Good evening, everyone. And as always, Payal, of course, is the first who always welcomes you, and then there's me, and then there's the four other women who make the evenings as memorable as we hope they are. So Nina, Anjali, Shuli, and Ritu join me in welcoming all of you here today. As Payal said, it's 6 months of starting Algebra, and one of the great endeavors of Algebra has been, as I often say, to create some degree of emotional and mental transformation through these evenings, to create a window into the worlds that we never otherwise encounter. And that is a great part of the reason why Algebra was set up. And that's what makes our first speaker this evening so very special. Most of all, even before I introduce who she is or what she represents, she really is emblematic of what a human heart looks like when it is open and unencased and unself-regarding. She epitomizes courage, and most of all, she epitomizes an internal moral compass, which all of us can very easily lose sight of in the kind of race of life that we live in. Living in a city, it's hard to imagine that this story that she represents is true. Living in a city, it's hard to imagine that the story is Indian. Living in a city, it's hard to imagine that stories like this even happen because they exist outside the orbit of one's experience. But the speaker who's going to come up today is not just a story, not just a true story, but an emblematic story. She represents the voice of 80 million tribals, 80 million invisible people in India. We speak of Dalits, we speak of Muslims, we speak of other minorities, but we're pretty much blind in our imaginations to 80 million people. That's twice the population of Spain. They don't come into our media stories, they're not part of our cinema, they're not part of our emotional or intellectual imagination. But she's not just emblematic of tribal India. She's emblematic of a very bloody and very long-standing conflict in the heart of India, in Bastar, in Chhattisgarh, and indeed in 17 other states of this country, a conflict that we barely hear of, except as the Maoist crisis. Prime Minister Manmohan Singh once called it the greatest internal security threat in India. That was not a very accurate description because it left out the large emotional subterranean space around what is merely seen as a security threat. Who are the Maoists? Why do people join them? What is the experience of those who are trapped between the violence of the Maoists and the violence of the state? That emblematic story is Soni Sori. Soni Sori is a young Adivasi teacher from Bastar. She was someone who was a school teacher who was basically standing up for her rights. And she was asked by the Maoists to join the Maoists. She was asked by the state to become a police informer, and she refused. She represented the idea of principled neutrality, and she's paid the price for it. She was framed in 8 cases. She was jailed. She was jailed for 2.5 years. She was tortured. She was raped. She had to fight for the Supreme Court to even accept that she was raped because the police officer under whose watch she was tortured was given the National Gallantry Award. But she was finally exonerated. She stood for elections. She came out, her father was shot by the Maoists. Her husband was picked up as a Maoist and killed in jail. She has 3 children. And yet, she went back to Chhattisgarh and she's still fighting the principled fight. In the meantime, after she was a free woman, she was chemically attacked, her face was burned, and yet she stands there. Not just a voice for the tribals, but a voice for all of us, believing in the Constitution and believing in the idea of education and the power of being a teacher. So before we invite her onto stage, I'd like to show a small film to evoke for us the space from which Soni Sori comes and what it is to be a courageous woman there.
Au kanalo ko polis tatina. Polisi wasi au kanalo. Pakai अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे। जब फायरिंग होता है, काउंटर होता है, उस समय हम लोग पकड़ते हैं, पकड़ना भी नहीं चाहिए उनको, उसी समय इनकाउंटर में खत्म करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ह्यूमन राइट्स कमीशन को फेस करना होगा तो मैं चीफ मिनिस्टर के रूप में मैं फेस करूंगा, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को ह्यूमन राइट्स कमीशन को फेस करने का अवसर नहीं दूंगा। जो भी ताकतें भारत देश की आंतरिक सुरक्षा को, सार्वभौमिकता को, एकता और अखंडता को चुनौती देते हैं, ऐसे ताकतों को सख्ती से कुचल डालना चाहिए। पुलिस भी वैसी है या फिर ये इन नक्सलवादी भी वैसी है, उतनी है बराबर। जी हम बीच में मरने वाले। अरे मंदिर ये चुप है, अरे मस्जिद ये गुमसुम, इबादत तक पड़ेगी समय की लाल आंधी, कब्रिस्तान के रास्ते, अरे तक चलेगी जो मेरा चेहरा है वर्तमान में, ये बस्तर की लड़ाई का एक चेहरा है जो इस तरह में है। तो ये सोचते होंगे मुझ पे अत्याचार करके मेरे मनोबलता को तोड़ देंगे, ये नहीं है। जितना मुझ पे अत्याचार होगा, उतना ही मेरे अंदर एक ताकत आते जा रही है और मेरे ताकत में मेरी ताकत बढ़ते जा रही है। मेरे एक सोनी सोनी की लड़ाई नहीं है, ये मानवता का लड़ाई है और एक मतलब महिलाओं के लिए लड़ाई है। जेल जाने के बाद मैंने वो जीवन पाया, वो विचारों को उत्पन्न करके बाहर आई हूँ, तो मैं अब लड़ूंगी, मैं अपने लोगों के लिए। अगर मैं छत्तीसगढ़ में आके अपने लोगों के लिए लड़ूंगी तो कई लाखों बच्चों को मैं बचा सकती हूँ। Ladies and gentlemen, it's my great honor to invite somebody who's an inspirational figure and a friend, Soni Sori. मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है, आप सबके बीच में मेरे को आने का मौका मिला। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो मेरे को एक जीवित के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सोमा जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब मैं जेल जाने से पहले इन्होंने मेरी स्टोरी किया है, जो उनकी स्टोरी की वजह से मुझे अपने आप को मतलब दोष को मुक्त करने के लिए वो बहुत बड़ा मेरे लिए वो दौर था। और मुझे उस दौरान मुझे 4 जेलों में रखा गया, तिहाड़ में, कलकत्ता में और रायपुर और जगदलपुर में।
लेकिन सोमा जी ने अगर वो चीज़ नहीं की होती तो मुझे कोई भरोसा नहीं करता कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है। तो ये सबसे बड़ा मेरा लड़ाई का एक हंस का शुरुआत सोमा जी ने किया था। बहुत बहुत शुक्रिया सोनी जी, आपने आया है, ये बहुत मेहरबानी किया है। सोनी इज़ फाइटिंग अ वेरी बिग केस इन छत्तीसगढ़, नॉट जस्ट फॉर हर सेल्फ बट फॉर अदर women who are languishing in jail, and she took time off because we requested her, so thank you सोनी। मैं इस फिल्म के दौरान और कुछ इंट्रोडक्शन में भी आप पे जो हादसा हुआ है, आप पे जितना हमला हुआ है, उसका थोड़ा हम झलक दिए हैं सोनी, पर आप बता पाएंगे कि इसमें जो आपके साथ हुआ उससे आप में क्या बदलाव आया, आपके विचारों में क्या बदलाव आया? ये जो कुछ भी हुआ, मतलब मैं तो एक टीचर थी जिसने सोमा जी ने काफ़ी चीज़ें आप सबके बीच में बताया है, और टीचर में रह के शायद मैं वो चीज़ नहीं जान पा रही थी। लेकिन जब मैं जेल गई, जेल जाने के बाद मेरे विचारों में इसलिए बदलाव आया क्योंकि मैं जब जेल जाके बहुत लोगों की ज़िंदगी में, मतलब जो लोग ऑलरेडी, बहुत ऐसे महिलाएं हैं जिनके निप्पल काट दिया गया है, जिनके साथ बलात्कार हुआ है, जिनका तो सामने में उनके निप्पल काटे तो हैं, चेस्ट भी नहीं, मतलब ऐसे बहुत बेदर्दी के साथ मारपीट करके जेल। तो जब मैं जेल गई तो उस जेल में हर दिन का रात और सुबह मुझे एक बहन की कहानी से गुजरता था, और उससे मुझे एक सीख मिला और उससे मुझे अनुभव हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं खुद, क्योंकि मेरे माता पिता और समाज ने एक चीज़ सिखाया था, अगर लड़की के ऊपर अत्याचार होता है या किसी भी प्रकार का ऐसा अनहोनी घटना घटती है तो नहीं बताना चाहिए। तो वो मेरे, उसके बावजूद भी मैं किसी को नहीं बताती थी और मैं अंदर ही अंदर घुट के रह जा, क्योंकि मेरे को अरेस्ट करने से पहले बहुत प्रताड़ना दिया गया, और उसके जो मतलब अंकित गर्ग एसपी ने करंट शॉट दिया गया, जो आज भी मैं इस जो पैरों में चलती हूँ मेरा कभी कभी शून्य हो जाता है, तो उसको पूरा शॉट दे दे के मुझे ताने में रखा गया और निवस्त्र किया गया, और मेरे गुप्तांगों में इतने पत्थर डाला गया जिसका मतलब उस समय मैं कितना चीखती रही, चिल्लाती रही, मतलब ये कैसा एक मतलब अन्याय करते रहे। लेकिन इसका अभी भी उनको आज राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। अने मतलब जब से पुलिस मुझे पकड़ी जेल से लेके आज तक हम इस लड़ाई को फाइट कर रहे हैं जरूर, लेकिन बहुत इस लड़ाई को मुझे मजबूत करने के लिए कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी। तो सोनी, जब ऐसे कहानी हम सुनते हैं शहर में रह के, आई जस्ट वांट टू अपोलोजाइज फॉर माय हिंदी एंड माय ग्रामर, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम बोथ अ बंगाली एंड अ कॉन्वेंट एजुकेटेड पर्सन, सो डू बेयर विथ मी। तो जो आप पे हुआ है वो सब सुन के यहाँ में मुश्किल होता है मानने को कि ऐसे व्यक्तिगत में होती है। तो जब आपने अभी बताया कि आपकी अंदर ये पत्थर डाले हुए थे, आपकी एनस के अंदर पत्थर डाले हुए थे, पर कोई माने नहीं इसको, तो आप उसका एक बता पाएंगे कि आप पे क्या इल्ज़ाम लगाया गया और आपको कैसे प्रमाणित करना पड़ा कि सच्ची में आपके साथ ऐसे हुआ था? जब मुझ पे इसलिए पत्थर डाला गया निवस्त्र करके करंट शॉट तक, क्योंकि मुझे माओवादी पूरी तरह ये कहना चाहते थे कि मैं माओवादी हूँ, क्योंकि मैं कहती थी कि मैं माओवादी नहीं हूँ, मैं एक स्कूल टीचर हूँ, मैं गांव की रहने वाली एक ग्रामीण महिला हूँ और मेरी शादीशुदा मेरी ज़िंदगी है, तो मेरा माओवादी से कोई लिंक नहीं है। लेकिन पुलिस हर बात पे वो इसी तरह का मुझे जिद करते हैं, बहुत मारपीट करना, ये सब करके माओवादी ठहराने के लिए उन्होंने मेरे साथ ये सब किया। और उस समय अंकित गर्ग एसपी ने ये भी बोला था कि ये एक महिला है, इसको इतनी शर्मनाक प्रताड़ना दिया जाए ताकि ये जेल में जाके इसको मरना चाहिए, ये कभी बाहर नहीं आना चाहिए, या तो इसको 10 साल की सजा हो या फिर इसको मरना होगा। इस तरह से मेरे को शर्मनाक घटना उस तरह से किया गया। करने के बाद फिर जो ये बोलने की कोशिश करती रही, लेकिन ये लोग कभी मेरा नहीं सुने और ना तो। लेकिन मेरा सवाल आज ये है, कोर्ट कहती है कि मेरे गुप्तांगों में पत्थर नहीं डाला, अगर नहीं डाला होता तो मुझे जब जेल ले जाने से पहले इन्होंने कोर्ट में मुझे नहीं ले गए, मैं चिल्लाती रही कि मुझे कोर्ट में ले जाया जाए, क्योंकि मैं कोर्ट को बताती कि मेरे साथ क्या हुआ, क्यों मैं बोल सकती थी। इसलिए मुझे ये लोग कोर्ट में बगैर पेश किए मेरे को जेल भेजे, जेल में जाके फिर उसके बाद मेरे को जेल में डाल दिया गया इतनी बेरहमी के साथ। Ultimately, when she went to the Calcutta hospital, it was finally proved that this had happened with her. पर सोनी, आप अरेस्ट होने के पहले आप दिल्ली आए थे, मैं इनके साथ थोड़ा जल्दी से शेयर कर लेती हूँ।
there's a great conflict, as I said, in the heartland of India. And the big crisis there is that the Maoists want all tribals to align with them, and the police want the tribals to be informers. And as we showed in the film, it's a very mineral-rich land, and the state wants that land. The constitution prohibits anybody, including corporates, from taking the land without tribal permission. And that really is at the heart of the conflict there. It's the poorest zones in the country. People are really living beyond the pale of the Indian state, but they're living in peace. And the violence is really taking over that land. So Soni was caught in that conflict of not wanting to align with either side. And she came to Delhi, in fact, to the Tehelka office, and she said that she wanted to use her voice as a teacher and use her constitutional rights to prove her innocence. तो आप आए थे हमारे ऑफिस, आपने सोचा था मीडिया के सामने अपना कहानी पेश करने से आपको जस्टिस मिलेगी, पर उसके अलावा आप अरेस्ट हुई, आपको टॉर्चर किया गया, और फिर 2-2.5 साल बाद जब आपने बाहर निकला, तो तब आपने बदला लेने के लिए हथियार क्यों नहीं उठाया? आपने ये रास्ता क्यों चुना कि आप वापस वहीं पे जाओगे और अपना आवाज़ उठाएंगे? देखिए, अगर मैं ऐसा तो बदले की भावना तो आती रही, ऐसी बात नहीं है कि जो मेरे साथ इतना कुछ हो ना, मतलब मेरे पति को भी कैसे जेल डाला गया और किस तरह उनको मारा गया, मेरे 3 बच्चे कितना एक लाचार की ज़िंदगी जिए, मेरी माँ जो मेरे वो सदमे में बर्दाश्त नहीं की वो गुजर गई, तो और मेरे को खुद के ऊपर भी इतना मेरे आत्मसम्मान पर इतना ठेस पहुंचाया गया, कहीं ना कहीं मुझ पे ये बातें ज़रूर आती थी। लेकिन मैंने उस समय ये तय कर लिया, अगर मैं एक हथियार उठाती हूँ तो ये लड़ाई सिर्फ मेरे लिए होगी, और ये लड़ाई मैं उनके लिए नहीं लड़ पाऊंगी जो ऑलरेडी जेलों में इतने साल बंद है, क्योंकि बंदूक से लड़ाई के एक हिंसा को जन्म दे सकता है, लेकिन विचारों से लड़ेंगे तो ये एक शांति लाया जा सकता है। इसलिए मैं कभी हथियार उठाने का कभी सोच भी नहीं सकती, और मैं सोचूंगी भी नहीं, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। मेरी जो कलम कहती है कि मतलब ये कुछ से मैं लिखूं और सच्चाई को पूरे देश तक पहुंचाऊं, क्योंकि मेरा शिक्षा एक वर्दी की तरह है और कलम मेरी हथियार है। जब ये दोनों चीज़ें मेरे पास है तो मैं हथियार क्यों उठाऊं? क्योंकि मैंने देखा, और आज वही विचार और वही चीज़ को मैं आज उस बस्तर में जाके मैं फाइट कर रही हूँ, लड़ रही हूँ, और जो मुझे बहुत वो लगता है, और मुझे पता है इस लड़ाई से मैं बहुत कुछ चीज़ें कर भी पा रही हूँ। तो इसलिए मैंने कभी बंदूक की बात सोचा भी नहीं, और बंदूक से कभी अशांति होगी, शांति कभी नहीं आएगी, और वो मैं कभी करूँगी भी नहीं। पर सोनी, आप दिल्ली में रह सकती थी, आपने कहा आपकी 3 बच्चे हैं, आपके यहाँ शहर में काफ़ी दोस्त है अब, तो आप यहाँ पे रह सकती थी, आप वापस छत्तीसगढ़ क्यों जाने चाहा? और वहाँ अभी भी काफ़ी डेंजर है, क्योंकि अभी भी वही स्थिति है जो पहले थी, माओवादी एक साइड और इंडियन गवर्नमेंट एक साइड, तो आप वहाँ वापस जाने की वादा क्यों किया? देखिए, मेरी मदद के लिए तो कई लोगों ने आए, उनमें से कई ऐसे भी होंगे जो बैठे, उनमें से भी मेरी मदद के लिए हमेशा मुझे बोलते रहे कि आप दिल्ली में रहिए, बच्चों को ले आइए, आपको यहाँ पूरा हम सुरक्षा देंगे और यहाँ आपकी ज़िंदगी होगी। लेकिन मैं इसलिए अब दिल्ली में आके रहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जेल के अंदर में जब फाइट कर रही थी, वहाँ भी मेरी संघर्ष काफ़ी चला, क्योंकि मैं 2.5 महीना भूख हड़ताल में थी। वहाँ पर भी मुझे टॉयलेट का जो पानी होता है, मेरे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए वो पिलाया जाता था, मुझे पानी नहीं दिया जाता था, और मेरे को एक दिन में 24 टेबलेट मुंह को दबा के खिलाया जाता था, जिससे मैं पूरी तरह बेहोश रहती थी, और कभी इंजेक्शन दिया जाता था, या फिर बंद रूम में मुझे रखा जाता था। वो इसलिए किया जाता था क्योंकि ये लोग जान से मुझे मार तो नहीं पा रहे थे, लेकिन मानसिक रूप से पूरा प्रताड़ना जेल के अंदर भी देते रही। तो वो सारी चीज़ों को तो उससे उनको ये लगता रहा होगा कि सोनी सोड़ी का हम प्रताड़ना दे, लेकिन वो प्रताड़ना मेरे को एक ताकत पैदा कर रही थी, अंदर से मैं स्ट्रांग मजबूत होते जा रही थी, और वो मजबूती मुझे वहाँ से मिला। तो जब मुझे जेल से जब कोर्ट ले जाते थे, तब पुलिस कई बार बोली, देखो मैडम, आप ना 4 दीवारी के अंदर में बैठ के और रह के ये बड़ी बड़ी दावा पूरे देश को बता रहे हो ना कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे और लड़ रहे हो, बाहर आके बताना, फिर हम बताते हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि वो भी वक्त आएगा तो मैं बाहर भी निकलूंगी और मैं लड़के बताऊंगी, फिर हम लड़ेंगे जरूर इस बात के लिए। तो ऐसा मेरा होता। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं यहाँ रहती तो
तो ये हमारे जो आदिवासी के जो समुदाय हैं, जो बस्तर कितनी आदिवासी है, सिर्फ सोनी सोड़ी अकेला ही लाचार नहीं थी, ना प्रताड़ित, ऐसे बहुत से अनगिनत बहनें हैं, भाई लोग हैं। अगर मैं दिल्ली आती तो उनकी ताकत कमजोर होती, और सरकार को ये लगता कि एक सोनी सोड़ी आवाज उठाने की कोशिश की, उसको हम लोग दिल्ली भगा दिए, और अब दूसरी सोनी सोड़ी कोई उठेगी तो उसके साथ भी यही होगा, फिर दोबारा ताकत उनमें नहीं आती। उनको ताकतवर बनाने के लिए मुझे वापस अपनी ही जन्मभूमि में लौटना मुझे मंजूर था, जो मैं लौट के चले गई। सोनी, एक और चीज़ है कि जो हम यहाँ शहरों में रहते हैं, वहाँ जो यहाँ पे मौजूद है, शायद उनको भी ऐसे शायद उनके सोच में आएगा कि आप जैसे एक्टिविस्ट है, टीचर है, हम पत्रकार, जो लॉयर्स मैंने दिखाए वहाँ पे, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, हम सब गवर्नमेंट के ऊपर, इंडियन स्टेट के ऊपर ज़्यादा सवाल उठाते हैं लोग। और इनका भी कहना है, पुलिस की कहना है, गवर्नमेंट्स को कहना है कि ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स सिर्फ स्टेट पे इल्ज़ाम लगाते हैं, सवाल पूछते हैं। माओवादियों पे इतना सवाल क्यों नहीं करते हैं, और माओवादियों पे ऐसी कड़क नज़र क्यों नहीं रखते हैं? तो इस पे आपकी क्या विचार है, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, माओवादी एक अलग, माओवादी कहता है कि वो लोकतंत्र और संविधान को नहीं मानता, पर सरकार में तो संविधान और लोकतंत्र है। तो हम उस लोकतंत्र की बात और संविधान की तरफ लड़के ये सरकार को बताना चाहते हैं। मान के चलो मतलब पुलिस फोर्स जाके महिलाओं के साथ अत्याचार करती है और उनके साथ मारपीट करती है, तो हम किसके पास जाए? हम तो जाएंगे इस सरकार के पास, थाने में भी जाएंगे और शिकायत करेंगे। लेकिन माओवादी जब इस तरह की वो करती है तो हम माओवादी के पास जंगल की तरफ थोड़ी ना बढ़ेंगे। वो तो सरकार का काम है कि वो कैसे उनसे निपटेगी और कैसे वो करेगी। ऐसा नहीं है कि वो अगर हिंसा कर रहे हैं, उस हिंसा का तो विरोध हम भी करते हैं कि जो जिस तरह उन्होंने बंदूक पकड़ के, और वो ये कहता है माओवादी की वो बंदूक की आड़ में अपने पूंजीवादी या फिर कोई समानतावादी लाना चाहते, उनकी सोच हो सकती है, हमारी सोच नहीं है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार इस तरह से अत्याचार, जैसा अब मेरे साथ इतना कुछ किया, इतने मतलब मेरे को प्रताड़ना किया, ऐसे कई महिलाओं के साथ हुआ है, तो हम कहाँ जाएं? माओवादी के पास तो नहीं जाएंगे, तो हम सरकार के पास तो आएंगे और उस थाना से हम शिकायत करेंगे कि हमारे साथ ये हुआ। लेकिन होता कुछ भी नहीं है। लेकिन हम एक उम्मीद तो कर सकते हैं, लोकतंत्र को जिंदा रखने की तो एक लड़ाई है। अगर ये लोकतंत्र को अगर नहीं जिंदा रखेंगे तो फिर देश का संविधान, देश का कानून का क्या मतलब? कोई मतलब ही नहीं रहता फिर इस तरह से होगा तो। अब बार बार ये सवाल उठता है कि आप माओवादी के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन उसमें भी बहुत भेदभाव किया गया है। क्योंकि जब माओवादी मारती है आदिवासी को तो उसके लिए सरकार ने मुआवजा देती है, और उसको ये देती है 9 लाख रुपए देगी, नौकरी देगी, बच्चों का स्कूल देगा। लेकिन जब सरकार की तरफ से अगर पुलिस जाके किसी की हत्या करते हैं, ऐसा तो हमारे 300 भाइयों की हत्या हुई अभी 2014, 15, 16 में 300 के लगभग हत्या किया, जिसमें वहाँ की सरकार कह रही है माओवादी है, लेकिन वो माओवादी नहीं है। लगभग उसमें 250 के आसपास तो हमारे सारे के सारे आदिवासी, लेकिन इनका तो पूरा घर टूट चुका है, बिखर गया, ये किसके पास जाए? माओवादी मारती है तो उतना तो दे रही है सरकार, लेकिन सरकार अगर उनको हत्या कर रही है तो अब वो कुछ नहीं, मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए अगर हम जैसे लोग नहीं खड़े होंगे, अगर ऐसे कुछ साथी नहीं खड़े होंगे तो फिर कैसे होगा? ये हमारा सवाल है। जैसे हमने आज जेल काट की जिंदगी जी रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारी नौकरी भी चले गई और हमारे पास जीने के लिए कुछ है नहीं, 3 बच्चे हैं, कितनी मुश्किल से हम पालते हैं, कितना वो करते हैं। तो इस तरह की वजह से ये हो रहा है। One of the things that again in the national media often this entire crisis gets represented merely as an assault on the Indian state. The Maoists are considered just a political force that wants to take over power from the Indian state. But experience on the ground really is something else. And all of us who were speaking up for this crisis were called Maoist sympathizers. Now that's so patently ridiculous that one doesn't feel the need to defend oneself against that charge. But the question really is that there is a layer of Maoist ideologues that believe in a Maoist ideology or in armed rebellion against the state. But the truth of the matter is that the foot soldiers of the Maoist insurgency are really tribals. They're really the poorest of the poor, 60% of which are made up of women. And the question that human rights defenders, journalists, lawyers, people like Soni Sori are asking the Indian state to consider is that why would tribals leave the fragile existence they are leading and pick up the gun for an even more fragile existence, which can only end in death? And that question of why tribals are picking up the gun is what really Soni again represents. तो सोनी, ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आदिवासियों माओइस्ट मूवमेंट से क्यों जुड़ते जा रहे हैं?
इसमें 60% महिलाओं जुड़े हुए हैं। क्या हालात है जिससे आदिवासियों हथियार उठा के इतना कठिन जिंदगी जीने चाहते हैं? वो वजह है, जैसे गोमपाड़ का एक केस है, जो इड़मे नाम की लड़की थी। अब वो लड़की शादी होके अपना घर मतलब 1 हफ्ता हुआ तो उसकी शादी हुए, तो वो लड़की अपने मायके आई हुई थी, और वो जब आके अपने माँ के घर बुखार होने के, तबीयत खराब होने के कारण सोई थी, तो पोर चारों तरफ से आई, घेर ली, लड़की को एक जंगल में ले गए, सामूहिक बलात्कार किया गया और उसको मार दिया गया। तो इस तरह से लड़कियों के साथ वहाँ पर हो रहा है, जो फोर्स के द्वारा, जो शासन के दिया हुआ जो कानून है, जो हमारी रखवाली करने के लिए वहाँ पर सरकार ने दे रखा है, वो फोर्स के माध्यम से इस तरह से वारदात होते रहते हैं। और ये किड़मे की बात नहीं करें, ये किड़मे ऑलरेडी मेरे पास है, जो 8 साल तक जेल में थी। तो जब उन्होंने पुलिस पकड़ने के बाद उसके 3 दिन रख के इतना टॉर्चर किया गया, आज उसका बच्चादानी से लेके हर चीज़ खराब है। जबकि वो लड़की मेला घूमने गई थी, मेला से उठा के ला के उसके साथ ये सब किया गया और 8 साल तक जेल में रखा गया, और उसके बाद उसकी रिहाई हुई। ऐसे और भी इड़ में अभी जब वर्तमान में हम गमपुर में एक अभी सुकमती नाम की लड़की है, जो 15 साल की थी, वो बाजार आई थी और जा रही थी, उसको फोर्स वाले पकड़े और जंगल में ले जाके उसके साथ बलात्कार किए। और बलात्कार करने के उसमें भी ये सवाल उठता है कि आप कैसे कह सकते हो बलात्कार। वो गांव वाले हमको ये बताते हैं, जब एक नाबालिग छोटी सी उम्र की लड़की है और उसको इतने बेरहमी के साथ बलात्कार करते हैं, तो वहाँ जाने पर हमको लोग बताते हैं कि उसको गुप्तांगों में किस तरह की हालत थी, कैसे सुजन था, कैसे ये था, इस तरह की जब बातें बता, यही वजह है कि ये फोर्स जो आज माओवादी में तागातों में जो महिलाएं जा रही है, ये कारण है। क्योंकि उनको ये डर है कि पुलिस जिस दिन भी पकड़ेगी या बलात्कार करेगी या मार देगी, बलात्कार करेगी या मार। इस सच्चा है कि हम माओवादी के पास जाएं और अपना बंदूक पकड़ें और लड़ें, क्योंकि उनके शिक्षा का भी कमी है, वो अशिक्षित हैं और स्कूल नहीं है, वहाँ कोई ढंग के स्कूल होता ही नहीं है और पढ़ते भी नहीं है, और गांव-गांव का स्कूलों को तो बंद कर दिया शिक्षा के कारण है। और जो जवान जो लड़के हैं जो माओवादी के पास जा रहे, बेरोजगार की कमी है, बेरोजगार हैं, बेरोजगार की वजह से वहाँ चले जाते हैं, उनको या इनकाउंटर किया जाता है या जेलों में डालें। आज छत्तीसगढ़ के जेलों में देखोगे तो हजारों के तादाद में लोग भर पड़े हैं, जवान लड़कियां जेलों में हैं और उनको हत्या होते जा रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या करेगा, इसलिए वो अपने आप में बंदूक उठा लेते हैं और माओवादी के साथ हो जाते हैं। One of the complexities of the Maoist crisis is this, that it's a conflict zone. And while we criticize, indeed, and justly criticize the way the forces behave, the way the state police behaves, the CRPF behaves, it is a zone of fear. And many of the Jawans on the ground are equally afraid of the forest and what might come out of the forest. And because villagers who are trapped in between, literally trapped, and that's a phrase even CRPF commanders say, that it's just not possible to be neutral there. Because if the Maoists come and ask for food, or they walk into the village and ask for water or shelter, the villagers have to do it. If they call a meeting, the villagers have to go. And then the police looks at that as aligning with the Maoists, that they are Maoist cadres. And then the police wants people like Soni Sori, who live deep in the jungle, to be their eyes and ears and to inform them about Maoist movements, in which case they're deemed to police informers, which is what her father was deemed to be and was shot by the Maoists. Her husband was picked up as a Maoist and was tortured in jail. He was exonerated. He was deemed to be a Maoist. The courts exonerated him. But 3 days before he could come out, he died in jail, paralyzed by the beatings that he got. So that's the kind of, like I said, she's emblematic of the kind of situation that the tribals find themselves in. One other thing I'd like to tell you before moving on to asking Soni is that some years ago, there was something called the Salva Jurum, which began in Chhattisgarh. It was called the Peace Movement. And the national media represented it as something that the tribals had taken to arms. It was a civil war between tribals who were fed up of the Maoists. But the truth is that it was a state-sponsored civil militia. And almost 3 lakh tribals were displaced and put into camps at that time. That went on for almost 10 years. Again, human rights defenders like the ones we showed in the film were maligned as Maoist sympathizers, as Maoist defenders, as anti-nationals, but they kept on fighting till the Supreme Court finally ruled that the Salva Jurum was unconstitutional, was illegal, and it was state-sponsored, and it had to be disbanded. The state was paying for civilians to pick up arms and fight other tribals. So now, on ground that has been disbanded, पर सोनी सोरी मैं सल्वा जुर्म के बारे में बात कर रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट की कहने पे सल्वा जुर्म तो डिसबैंड हो गया है, पर आपकी अनुभव क्या है कि ऐसे
गवर्नमेंट की ओर से और कोई ऐसे ताकत वहाँ बनाया जा रहा है जिससे ट्राइबल वर्सेस ट्राइबल, आदिवासियों के खिलाफ लड़ाने के जैसे और कोई शक्ति तैयार हो रहा है कि नहीं अभी? ये तो बन गया है। वो जो शक्ति की बात आप जो कह रहे हैं कि सलवा जुड़म को तो जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो उस समय तो कुछ दिन के लिए शांत रहा, फिर तो अब दूसरा सलवा जुड़म के रूप में कई ऐसे जो लड़के जो ऑलरेडी बंदूक पकड़े हुए थे, जो सलवा जुड़म को जो खत्म करने की बात की, उनको तो सहायक आरक्षक बन गए हैं और वो अब फिर से सलवा जुड़म का दूसरा चीज़ है। पर सलवा जुड़म में ये होता था कि जब फोर्स जाती थी तो अल्लाह करते घुसती थी गांव में और आग लगा देती थी घरों को और जवान जवान लड़कियों को मतलब देख के बलात्कार करना, नदियों में फेंक देना, जंगलों में फेंक देना, ये था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब सीधा जाते हैं घर में चुपचाप रात के समय उठा के लाते हैं और उसको मार दिया जाता है। अगर सोया है व्यक्ति तो उसके घर में जाएंगे और उसको उठा लेते हैं, कोई जंगल में ले जाते हैं, वहाँ मार के दूसरा दिन कपड़े पहना के माओवादी का ड्रेस पहना के बंदूक रखवा के शो करते हैं हमने माओवादी को मार गिराया। लड़कियों के साथ भी उनको हत्या कर देते, पहले बलात्कार होता है उसके बाद हत्या होती है, फिर उसको भी बंदूक दिखाएंगे और अपना जो भी बारूद है ये सब दिखा के शो करते हैं। कोई फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है कि सलवा जुड़म में जब आते थे तो सारे फोर्स एक साथ चिल्लाते फायरिंग करते आते थे, पूरे गांव में आग लगाया जाता। अब इतना है गांव में आग नहीं लगाते हैं लेकिन रात में आते हैं और उठा के ले जाके मार रहे हैं। अभी भी वो ताकत ऑलरेडी आज भी है, ऐसा क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, अभी भी ताकतों में ये चल रहा है वहाँ। There's something called the Samajik Ekta Manch now, which has replaced the Salva Jurum. Another thing I'd quickly like to share is that there is no real distinction between which party is in power. We watch Mr. Rajnath Singh saying that he has promised his forces that they will never have to confront the NHRC. They will never be subjected to the scrutiny of the NHRC, which is the National Human Rights Commission. Indeed, that's pretty much the way Mr. Chidambaram felt when he was Home Minister, and he launched Operation Green Hunt, which was really a military kind of response, a security response to what is essentially a humanitarian crisis. So there's really no distinction. बस इस लड़ाई में सोनी जी, जो या कांग्रेस है या बीजेपी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट का नज़र इस पे एक ही तरफ है कि इसको एक सिक्योरिटी अप्रोच होनी चाहिए। अभी हमने कल्लूरी को देखा, द पुलिस ऑफिसर वी शोड इन द फिल्म, उनका नाम है SRP कल्लूरी। जो बातें अभी टेलीविज़न में कह रहे थे, अगर मैं उनको सुनती तो मुझे लगता कि बहुत सही बात कर रहा है कि जो इंडियन स्टेट के खिलाफ हैं, जो इंडियन स्टेट की एकता को तोड़ने में लगे हुए हैं, उनको कुचल डालनी चाहिए। तो जब हम कल्लूरी की ये बात सुनते हैं, इसमें क्या गलत है, वो क्या झूठ बोल रहे हैं जो शहर में रह के लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा? देखिए, जो कुचलने की बात जो कह रहे हैं IG कल्लूरी, तो अभी आपने मेरा जला हुआ जो चेहरा दिखाया है, उस चेहरा इस तरह मेरे चेहरों को क्यों जलाया गया? क्योंकि बुरगुम में एक ऐसा कांड हुआ था कि वहाँ एक अपने बच्चों के साथ, वो 6 बच्चे का पिता था, इड़मा करके, उसको पुलिस ले जाके उठा के मार दी। जब मुझे बुलाया गया तो मैं वहाँ गई और उसके बाद हमने IG कल्लूरी से शिकायत नहीं किया, हमने सीधा DGP के पास गए और ये बोल के गए कि भाई जिसको अभी जब पुलिस प्रशासन ने मारा है, माओवादी को दावा कर रहा है, लेकिन उसका भारत का नागरिक होने का पूरा उसके पास डॉक्यूमेंट्स है, उसकी 6 बच्चे हैं, उनकी पत्नी है और उनका ये सारे जानकारी मैंने उनके टेबल में रखा। तो DGP ने तो लिख दिया, तो हमको ये लग रहा था कि शायद 1 हफ्ता में हमको हमारे लायक कोई अच्छी खबर आएगी, क्योंकि DGP ने संज्ञान में ले लिया। लेकिन वो नहीं हुआ, उल्टा हो गया है कि उसने मेरे ऊपर हमें केमिकल अटैक करवा के ये धमकियां दी है, अब दोबारा इस तरह के आदिवासियों के लिए लड़ोगे और कल्लूरी के खिलाफ लड़ोगे तो इससे भी बुरा हाल होगा और तुम्हारी बेटी को इससे भी बेहतर हाल करेंगे और पूरे देश में शर्मसार कर देंगे। तो कुचलने की बात हम जैसे लोगों को बोल रहे हैं, वो माओवादी के साथ जो बात है, जैसा हिंसा को जो जन्म देता, उसकी बात नहीं कर रहे हो। वो एक आदिवासी हम जैसे महिलाओं के लिए वो कुचलने की बात कर रहे हैं और हमारे जैसे कई महिलाएं, आदिवासी भाई बहन हैं, उनको कुचला जाता है। वहाँ पे प्रशासन उनको इस तरह से मतलब मारपीट करती है, हत्या करती है।
तो बता, इसकी तो मैं सोच को गलत ही बोलूंगी। इसलिए गलत बोलूंगी क्योंकि जो भी कुचलने की बात करता है तो सोनी सोड़ी जैसे कई लोग हैं, सोनी सोड़ी जैसे कई लोगों को निवस्त्र करके उसको बलात्कार करना, इनको कुचला जाता है, तो इसको कैसे हम सही मानेंगे? हो सकता है आप लोगों को इस तरह देखते हो तो ये लगता होगा आप लोगों को कि ऐसा ये जो कह रहा है सही है, लेकिन नहीं है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है जो मेरा केमिकल अटैक हुआ है और कैसे मेरे केमिकल अटैक करके उनको कुचलने की कोशिश किया। आज तक वो अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गए, जबकि जब पुलिस प्रशासन ये सब करेगी तो कहाँ से पकड़ा होगा? Again, it's a measure of the importance of these fights, which can be inconvenient, which might seem anti-national when one is far away from it. But the fact is, because of sustained resistance like this, that Mr. Kalluri actually has been chastised by the National Human Rights Commission and has been finally removed from Chhattisgarh as the IG. And a lot of that is to do with the work that Soni has been doing. To add insult to injury, when Soni was attacked by chemicals, Mr. Kalluri, in fact, said that her nephew, Linga Kodupi, who was also shown in the film, and who's a really fine human being, they are possibly the only two tribal voices coming out of Chhattisgarh that are trying to use the instrument of the constitution and their education to fight a just war. But it is so ridiculous that Mr. Kalluri said that the attacker on Soni Sori, the person who was put that chemical on her, is her own nephew, Linga Kodupi. And after Mr. Kalluri was removed from Chhattisgarh, barely 2 weeks ago, there was another SP, Mr. Elisa, who stood in a rally with other police officers there and said that all human rights defenders, many of whom were shown on the film, should be put in front of tanks and crushed. And that is the approach that the state has to the inconvenience of those who speak for the constitution and may be opposed to the excesses of the state, but doesn't naturally make you, anti-national. तो सोनी, मैं जस्ट कह रही थी कि पुलिस के ऊपर अभी काफ़ी असर हुआ है कि आपके बोलने पर नंदिनी सुंदर, बेला भाटिया, इन सब के काम पे, हिमांशु कुमार जी के काम पे अभी कुछ असर तो हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट भी इसका मान रहे हैं कि यहाँ पे कुछ अत्याचार हो रहा है। तो इसके अलावा मैं और कुछ पूछने चाहूँगी, पर उसके पहले आपके बच्चे के बारे में पूछने चाह रही थी कि आप पे आपको जो भुगतना पड़ा है, आपका पति जेल में मर गए, आपका माँ भी मर गई हैं ये 2-3 साल में, तो आपके बच्चे बहुत छोटे थे जब जेल में गए, तो उन पे क्या असर हुआ है? वो डरते हैं, वो आपके लड़ाई में सहमत है कि चाहते हैं कि आप नहीं लड़ें? उनके बारे में कुछ बताइएगा। जब मैं जेल गई, मैं उनके मतलब मेरे जेल जाने के बाद उनके पिता भी जेल गए, तो मुझे लगता था कि मेरे बच्चे बहुत कमज़ोर होंगे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी 2.5 साल जेल की ज़िंदगी काटा है, क्योंकि उनको भी एक साथ पालने के लिए कोई परिवार नहीं मिला, सब अलग अलग मतलब वो रहते थे, मेरे बच्चे हॉस्टल में रहते थे। तो कुछ चीज़ें हिमांशु सर ने काफ़ी मदद किया मेरे बच्चों के लिए, और मेरे बच्चे आज बहुत मजबूत बन गए हैं। जब मुझे केमिकल अटैक हुआ तो तब मुझे लगा, जब क्योंकि मैं खुद अस्पताल में जो दर्द को महसूस कर रही थी, और जब केमिकल अटैक के दौरान ये कहा गया था कि तुम्हारी बेटी को इससे भी भयानक तरीके से हम हमला करेंगे, तो तब मुझे लगा कि मैं एक माँ हूँ, तो मुझे लगा कि मेरी बेटी इतना सह पाएगी या नहीं कह पाएगी जो मैं सह रही हूँ। क्या ये लड़ाई मुझे लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। और जब मैं वापस गई, मैं अपनी बेटी से पूछी कि मेरी बेटी अभी 16 साल की है, तो उससे मैंने पूछा, बेटा अब मैं क्या करूं, क्योंकि जो दर्द मैंने झेला है वो दर्द शायद तुम नहीं झेल पाओगे, और इस तरह फिर कभी हो जाएगा तो तुम्हारी पर घटना, तो क्या करूं, मेरे को लड़ाई छोड़ देना चाहिए? तो नहीं, उन्होंने साफ बोला कि नहीं मम्मी, आप अपनी लड़ाई लड़ो, क्योंकि लोग आप पे भरोसा करते हैं। यहाँ की जनता आपको एक मतलब उस नज़र से आपको उम्मीद करती है, उसकी उम्मीद को कभी मत तोड़ना, कभी वो मत करना, आप अपनी लड़ाई लड़ो। हम डरने वाले में से नहीं हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी कई मतलब चिट्ठियों में धमकी भरा पत्र आता था, तो मेरे बच्चे उसे देख के पढ़ते हैं और हंसते हैं कि ये तो आम बात है, कि ये इससे क्या हमको डर लगेगा। ये करके वो लोग बिल्कुल भी अपने डर भय नहीं लेते हैं। जिस रोड में मैं चलती हूँ उसी रोड में मेरा केमिकल अटैक हुआ है, तो कभी कभी मैं अपने बच्चों को लेके चलती हूँ, तब मुझे मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी वो देखो आपका ब्यूटी पार्लर है, तो मैं बोलती हूँ क्यों, मैंने इतना दर्द झेला है, आप मेरे को उसको ब्यूटी पार्लर, सरकार का बनाया हुआ ब्यूटी पार्लर है, तो ये बोलते हैं कि ये सरकार ने आपको बना के ब्यूटी पार्लर दिया, ऐसे आपका ब्यूटी पार्लर में ऐसा मेकअप करते हैं जो डॉक्टर के पास जाके आप ठीक होते हैं मम्मी, इसको हम कभी नहीं भूलेंगे। मतलब उन बच्चों में भी इस लड़ाई करते करते इतनी उनका उत्साह हुआ।
मुझे अच्छी तरह याद है, जब गांव में मेरे फ़ोन आते हैं या किसी को हत्या होती है या किसी को बुरी तरह मारते हैं पीटते हैं, तो हमारे यहाँ कभी कभी पैसे नहीं हुआ करता। तो हम, क्योंकि मेरी ज़िंदगी एक चंदे की जीवन जीती हूँ और जो कुछ देते हैं उसी में हमारा गुजारा चलता है, तो कभी कभी नहीं होता, लेकिन हम मजबूर हो जाते हैं। हम ताकत से लड़ सकते हैं, शरीर की ताकत से लड़ सकते हैं, लेकिन पैसा जैसे चीज़ होती है तो उस समय हम मतलब कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो उस दिन मैं बहुत परेशान थी, तो मेरी बेटी का कान का बाली था, उसने मेरे परेशानी देख के उन्होंने किया कि अपने कान की बाली को बेच दिया और ला के मुझे 1400 रुपये पकड़ाई। तो मैंने बोली पैसा कहाँ से? मैं बोली आपकी लड़ाई ज़्यादा मायने रखती है, लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं, इसलिए आप इसको रखिए और जाइए जहाँ आपको ये आवाज़ दिए हैं उस जगह पहुँचिए। तो वो था बेलम नेंड्रा, जो आज पूरा मतलब देश में उस बात का चर्चा है। बेलम नेंड्रा पेद्दा गेलो, जहाँ महिलाओं के साथ 40 महिलाओं के साथ नदी में तालाब में उनको ले जाके निवस्त्र करके उनको बलात्कार किया गया, जो पुलिस बल के द्वारा, वो घटना का मामला है। जो मेरी बेटी ने मुझे इस तरह से करके मेरे बच्चे मुझे मदद करते हैं और मेरे बच्चे डरते नहीं हैं और बहुत बहादुर है और हमेशा मेरे साथ रहते हैं। अब मैं यहाँ आई हूँ तो कभी नहीं बोलते हैं कि मतलब मम्मी क्या कर रही है। घर जाती हूँ तो बोलते हैं माँ है, जब वो बोलते हैं कि बस हमारी माँ तो 2 भाग में बढ़ जाती है। जब पब्लिक में जाती है तो उनकी हो जाती है, तो हम याद नहीं करते हैं। जब आप वापस आते हो घर तो याद आता है कि हमारी माँ हमारे पास आ गई। सोनी, अभी जो बीजापुर में हुआ, I'll again quickly share with you that there was this incident that Soni just mentioned, which happened in Bijapur, and people like Bela Bhatia, Soni, and others have been raising those issues. They've literally been threatened, and it's very hard. I often feel that when I'm not in the field, and for several years, I haven't had the opportunity to go on the ground, it's very easy to forget that existence, forget that reality sitting in the city. One can doubt it. One can doubt that any of this actually happens because it's so far removed from the experience that we have of Indian democracy and the Indian state. It's very hard to imagine that any of this can happen. But the truth is that anybody who went to investigate this case were physically threatened. The journalist had her house surrounded, Malini Subramaniam. Bela Bhatia was mobbed by almost 200 people. She had to call the police. She now lives under police protection. Soni, of course, has been sharing her story. But finally, because of that investigation, the NHRC has ruled that all those cases were true, and that is the impact that it's had, that Mr. Kalluri has been removed because the forces under him were doing that. सोनी, तो मैं ये इंसिडेंट शेयर कर रही थी कि क्या वहाँ पे हो रहा है, पर आप जब ये बार बार देखते हो कि ऐसे हादसा होता है, फिर और हादसा होता है, आप आवाज़ उठाते रहते हैं, आप किस चीज़ पे उम्मीद रखते हैं? आप किस चीज़ को मानोगे कि एक विक्ट्री हुआ, कि आपकी जीत हुआ, कि आपको लगता है कि इस लड़ाई से जुड़े हुए रहना चाहिए? इस 3-4 साल में किस चीज़ से आप में आशा पैदा हुआ है? देखिए, विश्वास इस चीज़ से है मुझे, क्योंकि कानून की लड़ाई में तो बहुत देर है। आज तक तो मेरा सुप्रीम कोर्ट में जो मेरे पत्रे मेरे गुप्तांगों से निकाला गया आज तक पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। तो हम मैं कानून की उम्मीदों में तो हम नहीं जी सकते। अगर ये इंतज़ार करें कि हम कोर्ट हमको न्याय देगा और उस न्याय देने के बाद ये जो लड़ाई हो रही है उसके लिए कुछ अच्छा हो सकता है, तो संभव नहीं है। हम पब्लिक में जाके या जनता में जाके और लोगों के अंदर जाके इसलिए फाइट कर रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं कि पहले तो हमारे जो महिलाएं जिनके साथ बलात्कार बेलम नेंड्रा में हुआ, पेद्दा गेलूर में हुआ, कुंडा में हुआ, इतनी बुरी तरह उनके साथ गलत किया गया है। जो कुछ महिलाएं तो अपने बच्चों को जन्म भी दिए, पर उन बच्चों में भी ऐसी कमियां आई है, तो किसी के कोई एक बच्चे में तो टॉयलेट करने को जगह भी नहीं है। मतलब उस दौरान वो 2 महीने 3 महीने पेट से में थे, तब उनके साथ बलात्कार हुआ है। लेकिन इसमें बड़ी बात हमारे लिए ये चीज़ होती है कि जब उनके बीच में हम जाते हैं, सबसे पहले वो तो आगे आने को तैयार नहीं थे, और हम पुलिस से कैसे लड़ें? हम सरकार से नहीं लड़ सकते। हमको इस तरह से जो भी पुलिस कर रही है, फोर्स करती है, उसको अपने को सह के रहना है, किसी को हम नहीं बताएंगे। ये बात थी, तो उनके अंदर हम लोग ताकत डालें कि आप अपनी प्रताड़ना अपनी आवाज़ बन के बताओ। जैसे मैंने अपनी प्रताड़ना को अपनी आवाज़ बन के पूरे देश को बताया, पूरा देश जानता है, ताकि हम अपनी आवाज़ को पूरे देश तक पहुंचाने की कोशिश करें। हो सकता है कि सारा देश मिलके, जो हमारे साथी जो हमारे लिए जो सोचता है, वो मिल के हमको कुछ न्याय दिलाने में मतलब हमारी मदद कर सकें। तो हमको शर्म करके नहीं रहना।
तो तब से महिलाएं के साथ जो भी होता है वो मारते हैं। आजकल जो वहाँ की फोर्स जो मारपीट करती है ऐसे अंगों में मारता है जिससे उनको ये लगता है कि ये महिलाएं अपनी वो अंगों को नहीं दिखा पाएगी, गुप्त अंगों में मारेंगे या पीछे के साइड में मारेंगे, ऐसे ऐसे जगह पे मारते हैं। तो जब हम अपनी बात जब बताए कि मेरे साथ पुलिस ने ऐसा किया, मेरे साथ पुलिस ने इस तरह से प्रताड़ना दिया, तो तब वो कहते हैं कि जब ये नहीं शर्माती है पूरे देश को बताने के लिए तो हम क्यों शर्माएं, चलो हमको भी अपनी बात को बताने। तो ये खुल के अपनी बात को अब रख रहे हैं और महिलाएं सारी जंगल से निकाल के मैदान में आके थाना कलेक्टर हर जगह खड़े होने का एक ताकत दिखार, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनी। अब ऑडियंस से जो भी क्वेश्चंस हैं हम वो आपसे पूछेंगे। जब तक मैं ये पढ़ रही हूँ जो क्वेश्चंस आपके लिए आए हैं, एक लास्ट प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी कि हम सिर्फ संघर्ष के बारे में बात कर रहे हैं अभी तक, कॉन्फ्लिक्ट, बलात्कार, अत्याचार, पर एक चीज़ है कि हम किसी को पता नहीं है कि आदिवासियों चाहते क्या हैं, किस तरह की ज़िंदगी जीने चाहते हैं, किस तरह का भविष्य चाहते हैं। ना गवर्नमेंट को पता है, ना हमको पता है, ना किसी और को पता है। आप क्या कहेंगे कि आदिवासियों क्या चाहते हैं कि जंगल में जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे कि डेवलपमेंट चाहिए, शहरों चाहिए, उनका क्या सोच है? देखिए, आदिवासी भी एक इंसान है, आदिवासी भी एक मानव है, वो भी जीना चाहते हैं। अब सरकार तो हमेशा आदिवासियों पर ये बोलती है कि वो विकास के विरोध है, विकास का विरोध कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ ये है। लेकिन हम ये कह रहे हैं हम विकास के विरोध नहीं हैं, आदिवासी भी विकास के विरोध नहीं, हमारे कोई आदिवासी भाई बहन ये नहीं कहते, पर वो इतना चाहते हैं कि उनकी मर्जी के हिसाब से विकास हो। उनका जल जंगल जमीन उनका है, हमारा है, हमसे बगैर पूछे बगैर कुछ करे अगर फोर्स के माध्यम से जाके मारपीट करके उस जमीन को छीन के अगर ये किसमें कंपनी खड़ा कर ले तो ये कैसा विकास है, उसकी विरोध करते हैं। जैसे अभी भी बस्तर में एनएमडीसी है, एसआर है, एसआर में एसआर जैसे कंपनी वहाँ खुली है। और एसआर मैं ये कहना चाहती हूँ एसआर के खिलाफ भी कि ये बताइए उस एसआर में मुझे फंसाया गया, मेरे साथ इतना गलत किया गया और मुझे 2.5 साल रखा गया, और उसके बाद उस एसआर के मालिक है या फिर ठेकेदार है उनको 2.5 महीना में जमानत दे दिए। अगर ये आरोप एसआर कंपनी को भी लगा था कि पैसा माओवादी को एसआर देती है तो आज सरकार उस कंपनी को बंद क्यों नहीं करती है। लेकिन ऐसे कंपनी खोल के हम जैसे लोग शोषण हमारे साथ होता है, हमारे साथ अत्याचार होता है, इसलिए विरोध करते हैं। तो ये वहाँ के आदिवासी जीना चाहते हैं, उनको भी एक प्रकार का मतलब स्वतंत्रता चाहिए, उनको भी वो संविधान चाहिए, वो कानून चाहिए, स्कूल चाहिए, वो हर तरह से अपने जीवन को एक मानवता की तरह जीना चाहेंगे। क्यों नहीं जीना चाहेंगे, लेकिन उनका शर्त यह है कि वहाँ जो भी विकास हो पर उनकी मर्जी से, उनकी मतलब उनकी सहमति से हो तो वो हमेशा तैयार रहेंगे। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है, छीन झपट के अगर कंपनी लगाने की कोशिश करेगी तो उसके विरुद्ध खड़े होते हैं, तो उसको माओवादी बनाया जाता है, उसके साथ इतना मतलब अत्याचार किया जाता है, इसलिए ये लड़ाई इस तरह से है। अच्छा सोनी जी, यादव मेहरा पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट और पुलिस कुछ भी अच्छा काम किया है वहाँ पे, और अगर कुछ किया है तो आप बता पाएंगे? अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि क्या अच्छा किया है क्योंकि मतलब जब से हम तो देख रहे हैं वहाँ के अत्याचार और कुछ ऐसा है। और हम अभी भी बार बार हम पुलिस फोर्स के बारे में बोलते हैं तो हमारी ये भी कहना है कि हम पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हम जो गवर्नमेंट ने जिस तरह नीति बना के पुलिस फोर्स को वहाँ बेच के जो गुंडागर्दी की तरह जो करा रहे उसके विरोध पे हम वो करते हैं। तो कुछ अच्छा दिखा ही नहीं है तो मैं कैसे बताऊँ कि कुछ अच्छा किया है। जी, नवनीत जी पूछ रहे हैं कि आपकी कहानी सुन के लग रहा है कि ये बहुत निराश की कहानी है। आपके हिसाब से स्टेट को क्या करना चाहिए वहाँ पे? देखिए, ये तो एक मतलब मैंने आप लोगों के बीच में ये सारी बातों को बताया कि ये कहानी लगता है आप लोग को निराश है, लेकिन इस निराशीपन में भी आप सबको देख के हमको बहुत बड़ी हिम्मत मिलती है, हमको और लड़ने की एक ताकत मिलती है। लेकिन ये लड़ाई को मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जिस युद्ध भूमि में हमने उतरे हैं इसमें तो हमारे लिए हर पल में हर पग में हमारी मौत है, पर वो मौत में भी हमारे लिए बहुत खुशनसीब होगा। वो इसलिए कि वैसे हम लड़ते लड़ते अब वहाँ के आदिवासियों के लिए, वहाँ के बस्तर के लिए हम ये मर मिटे तो ये अच्छा होगा, पर इस लड़ाई का हमने कुछ चुना है तो इसको हम लड़ेंगे। और अब सरकार से और क्या उम्मीद कर सकते हैं, सरकार ने तो अगर अच्छा करना होता तो हम जैसे लोग को न्याय दे और इड़मे जैसे लोगों को न्याय दे, जो जेलों में बेवजह इतने लोगों को बंद कर रखा है उसे न्याय दे, ये करेगा ही नहीं
तो हम कैसे अच्छा माने, हमारे साथ कैसे अच्छा? हम तो सिस्टम से चलना चाहते हैं, संविधान के साथ चलना चाहते हैं, हम उसी तहत लड़ना चाहते हैं, लेकिन सरकार भूल गई, संविधान को भूल गई, अपने सिस्टम को भी भूल गई। लेकिन हम नहीं भूले, हम उसी तहत लड़ रहे हैं। पर सरकार को अगर कुछ करना है तो संविधान के तहत रह के काम करे तो सब अच्छा होगा। One of the things that meeting Soni Sori has done for me is to really bring back just how glorious and important the Samvidhan, the Constitution is. Again, that's something we forget because it's so much for granted, but just how important that document is. And that is separate from the Indian state and how it manifests itself. The really sacred text is the Constitution, and that is what Soni Sori and human rights defenders use in battling. कृष्णन जी पूछने चाह रहे हैं कि मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ की जो मिनरल्स है वो क्या, उसका क्या रोल है इसमें, जो संघर्ष वहाँ चल रहा है, कितना तौर तक ये मिनरल्स के ऊपर झगड़ा चल रहा है? मेन तो वही लड़ाई है वहाँ। मतलब देखिए, आदिवासी के पास ना तो कोई घर, बड़े बंगले हैं। कभी कभी आदिवासी मुझसे भी पूछते हैं कि हमको इस तरह मार क्यों रहे हैं, हमारे पास तो बड़े बंगले नहीं है, गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मार क्यों रहे हैं, हमको जेल क्यों डाल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता। तो मैं बताती हूँ कि आप तो सबसे बड़े मालिक हो, जिस जमीन में आप रह रहे हो उसके नीचे में क्या है आपको नहीं पता, इसी की तो लड़ाई है। तो ये चीज़ की वहाँ लड़ाई चल रही है, इसलिए आप लोगों को मारा जा रहा है, इसलिए हम सबको मारा जा रहा है। तो ये हम उनको वो बताते हैं वहाँ पे। तो इस तरह से वहाँ की संघर्ष जो जारी है। लेकिन ये कह रहे हैं, ये कहना चाहते, जैसा एनएमडीसी था, एनएमडीसी ने इतने साल से वहाँ चल रही है, लेकिन आज भी वहाँ के लोगों के लिए कोई विकास नहीं किया। वहाँ के लोगों के लिए जो बेरोजगार है, बेरोजगारी रह गए हैं, और वहाँ झोपड़पट्टी में है। तो हमारा ये कहना है कि यहाँ का जब लोहा इस्पात को हम बाहर भेज रहे हैं, तो उस जगह पर वहाँ का विकास कभी क्यों नहीं किया गया? इसलिए इसकी विरोध चलती है कि जब हमने आधे से ज़्यादा ये जमीन इलाका दे चुके हैं, इसके बावजूद भी हमारे लिए कोई राहत नहीं मिलता, ना किसी प्रकार का हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, तो हम आगे और ज़मीनों को दे के क्या करेंगे? इसलिए इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सोनी जी, हमारा टाइम खत्म होने वाला है, सो आई क्विकली रीड आउट सम ऑफ द थिंग्स दैट you've sent. Soni of course is here, and over drinks you can continue the conversation. What role do minerals and natural resources play? Krishnan asked. Who funds the Maoists? Are there any good things being done? Going to jail has strengthened Soni Sori, but has it weakened other women? We don't hear of too many other women fighting the way Soni Sori is fighting. She mentioned that many more women are coming forward, talking about their experiences, and so that resistance is growing. Anirban, words fail to express how poorly we fail in the test of human character in front of you. My respects. The question, teaching is considered one of the most noble professions, and you personify its nobility. What is your message to the students who are the future generation of Bastar? एक प्रश्न कोई पूछने चाह रहे हैं कि आईजी रामनिवास शर्मा के टाइम पे कोई बदलाव आया कि नहीं? आईजी रामनिवास शर्मा अभी कल्लूरी के बाद नहीं, अभी तो शुरुआत की, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। Yashwant Joshi, do you think the CRPF and Maoist police are working for the Maoists indirectly, as their injustice to common men leads to them joining the Maoists? Ideally, they're supposed to provide protection, whereas the common man seems to be fighting two battles, one with the Maoists and the other with internal security. And finally, just a couple of statements of respect. No question, just a thank you for standing up for the Constitution and helping this country retain its ideal of constitutional democracy, by Gaurav. And one last message from Shrikant. I truly am in awe of all that you're doing and have endured, and more power to you. Would you consider mainstream politics to not only spread your voice, but bring meaningful structural changes? तो उसी प्रश्न पे हम एंड करते हैं सोनी, कि आप इलेक्शन लड़ने का बारे में सोचे हैं, हम उनको बताए नहीं कि आप इलेक्शन से जुड़े हुए हैं कि नहीं, और आपको लगता है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से कुछ बदलाव आ सकता है? देखिए, मैं पहले चुनाव तो लड़ी थी, लेकिन अभी तक ऐसा तय तो नहीं किया है कि मेरे को चुनाव लड़ूं या नहीं, पर मैं राजनीति से जुड़ी हूँ। और वो भी एक वजह था कि राजनीति में जुड़ना मेरे को, मतलब बस्तर में अपने आप को जिंदा रखना और ये लड़ाई को जारी रखना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक मजबूरी थी। तो उस समय मैंने पार्टी ज्वाइन करके गई, लेकिन अब पूरी तरह सक्रिय होकर मैं राजनीति में भी मतलब भागीदारी रह रही हूँ और करती हूँ, और इस तरह से वहाँ के फाइट कर रहे हैं। और चुनाव के बारे में भी सोचा नहीं है, अब जब वैसा तय होगा तो मैं नहीं बता सकती।
Soni, in fact, stood for elections under Aam Aadmi Party ticket when she'd first come out of jail. It was the one party that had not declared her to be a Maoist. She lost the election because she was in jail and had barely come out before elections, took place. But in many ways, the battle that Soni is fighting is even deeper than merely electoral politics or electoral battles, because like she said, it's not all of us who can join elections and political parties, but by using that constitution, by using our rights as a citizen, and by choosing, in a resolute way, the peaceful resistance to extreme oppression is really what lies at the heart of our democracy. And it's people like Soni Sori that strengthens the society that we live in. As I said in the beginning, Soni is not just a friend and an activist, but really an inspirational figure, in some sense, an internal moral compass, certainly for us and for me and for others who've met her. And I hope after this encounter with her, for many of you as well. Please join me in thanking her for being here with us and for sharing her story. Thank you.